Hello, 6th standard. Today we will start with social studies and topic in that geography. Okay, we will start with geography today. The Earth, our habitat. Textbook in geography for class 6th. Okay, I hope you people are having this. If you don't have this textbook, then also no need to worry, because we'll be going in lesson word to word along with explanation. Okay, so today we will begin with first lesson, the Earth in the solar system. Now we have total 8 lessons in this, and from 8 lessons, let's begin with first lesson. I will be showing you exactly the text of lesson, as well as I will read each and every word with very clear voice so that you people can hear it and you all can understand the explanation well. Okay, so if you have your textbook, you can open your textbook along with me and have pencil in your hand. If you don't have textbook, no need to worry, you can see this video and you can understand these topics. Okay everyone, chaliye, so let's begin with our first lesson of geography. Okay, geography आप लोगों को फर्स्ट टाइम आया है, राइट? अप टिल 5th स्टैंडर्ड तो यू पीपल वर डूइंग विद EVS only, that is environment, right? Now geography, it includes boundaries, structures of particular areas. Then see, your first lesson is based on solar system. We all know that there are so many planets, so many matlab there are 8 planets in solar system, along with moon and sun and so many stars and all. Okay, and life is only on one planet in solar system, and that is on Earth, right? So these all are topic of geography only. geography में ही ये सब कुछ इंक्लूड होता है कि किस स्ट्रक्चर में आपका अर्थ मूव हो रहा है, किस स्ट्रक्चर में कितनी दूरी से अनदर planets are moving from earth. Everything is geographical structures. Okay, even कभी भी आपने अगर stars को ध्यान से कभी देखा हो तो stars also comes in different shapes. ये शेप बहुत क्लियरली दिखाई देता है स्काई में एट नाइट. ओके, सो ड्यूरिंग नाइट दिस शेप इज़ क्लियरली सीन. यही नहीं, कई अलग अलग तरह की शेप्स बनी हुई हैं स्टार्स की, और उन सब को अलग अलग नाम दिए गए हैं बाय साइंटिस्ट, दोज हु आर स्टडिंग स्पेस. ओके, सो हाँ, एक स्टार है जो हमेशा बहुत ही शाइन करता है, and if you stand towards west side and if you see towards north side up, you will see that very shining star, and that very shining star is named as North Star. Understood? Okay, or we can tell it is also named as Pole Star. वो जैसे जैसे हम लेसन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें आइडिया मिलता जाएगा. Okay, now in this lesson we are also going to study about one interesting thing, that is full moon and new moon. Like अगर हम if I speak in local language, then we can tell पूर्णिमा and अमावस्या. Okay, गुजराती में वो पूनम है या फिर अमास है, ये सब बोलते हैं, राइट? सो वो भी जब पूर्णिमा कब होता है और अमास कब होता है, अमावस्या कब होता है, that also we are going to study in this lesson itself. Okay, so let's begin with our lesson of first lesson of geography, the Earth in the solar system. How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice 1 or 2 bright dots shining in the sky. Soon you would see the numbers increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but
If you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. So, जैसे ही सूरज ढलने लगता है, वी आर एबल टू सी 1 or 2 स्टार्स इन द स्काई, तो हम उनको काउंट करने की कोशिश करते हैं. बट धीरे धीरे जब ज़्यादा अंधेरा होने लगता है तो बहुत सारे स्टार्स हो जाते हैं एंड इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू काउंट ऑल स्टार्स टुगेदर, राइट. वी कैन सी सो मैनी स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, but if you see carefully you will observe there are many stars which are not twinkling like others stars. It remains like that only. जैसे अगर आप मून को देखो तो मून कभी ट्विंकल थोड़ी करता है, मून एग्जैक्टली उसी लाइट में रहता है जिस लाइट में वो हमें दिखता है. यस, along with these bright objects you may also see the moon on most of the days. It may however appear at different times, in different shapes and at different positions. Okay, तो स्टार्स के साथ साथ हमें मून भी दिखाई देता है. सी, मून अलग अलग टाइम पे दिखाई देता है. इट इज़ नॉट दैट कि ओके एग्जैक्टली एट 9 PM वी कैन वॉच मून इन स्काई. नो, वी कैनॉट सी मून इन स्काई एग्जैक्टली एट वन सेम टाइम. ओके, अलग अलग टाइम पे हमें मून दिखाई देता है एंड यस अलग अलग शेप्स में दिखाई देता है. यस और नो, अलग अलग शेप्स में दिखाई देता है. ओके, लेकिन यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम. लेकिन आप सिर्फ एक ही दिन पूरा मून देख सकते हो 1 month में. दैट इज़ मंथली ओनली 1 day यू कैन सी फुल मून. इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा. उस रात को पूनम की रात कहते हैं और फुल मून नाइट कहते हैं. अ फोर्टनाइट लेटर, फोर्टनाइट मतलब 14 days, आफ्टर 2 weeks यू कैनॉट सी इट एट ऑल. 2 weeks के बाद आप मून को बिल्कुल नहीं देख सकते. इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, वो न्यू मून नाइट होती है. न्यू मून नाइट मतलब ऐसा नहीं है कि स्पेस में कोई न्यू मून आया होगा. इट इज़ नॉट लाइक दैट. मून वही है बट एंड स्पेशली स्पेस में मतलब अर्थ का. यू नो, इन फर्दर अवर पेज वी विल इवन स्टडी अबाउट मून्स ऑल्सो. ओके, नंबर ऑफ मून्स. सी, मार्स पे देयर आर 2 moons, देन अर्थ पे देयर इज़ 1 moon, राइट. उसी तरह से इफ़ आई टॉक अबाउट जुपिटर तो नंबर ऑफ मून्स आर 16 इन जुपिटर. तो अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग मून्स हैं और अर्थ पे एक ही मून है. ओके, जो अर्थ के ही साइड में घूमता है, इट रोटेट्स, राइट. तो उससे क्या होता है, व्हेन अकॉर्डिंग टू रोटेशन ऑफ अर्थ और मून का भी जो शेप चेंज होता रहता है एंड देन पूरे महीने में एक बार हमें फुल मून दिखाई देता है और उसके 15 days के बाद हमें बिल्कुल मून नहीं दिखाई देता. दैट इज़ उस रात को न्यू मून रात या अमावस्या की रात कहते हैं. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट. क्लियर नाइट होती है, आपको और ज़्यादा क्लियरली स्काई दिखाई देगा और ज़्यादा स्टार्स दिखाई देंगे आपको जब मून नहीं होता. ओके, देन डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम. इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई. सो लेकिन दिन में हमें ना मून दिखाई देते हैं ना ही वो सब ब्राइट ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं. इट इज़ ओनली बिकॉज दिन में जो सूरज की रोशनी है, सन लाइट है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके सामने मून और स्टार्स की लाइट डल हो जाती है. इट इज़ नॉट दैट कि स्टार्स और मून मतलब वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं. नो, स्टार्स और मून वहीं पर रहते हैं जहाँ पर उनकी पोजीशन है, बट वो दिखना बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ टू मच लाइट ऑफ सन.
Okay, the sun, the moon, and all those objects shining in night are called celestial bodies. Celestial bodies किसको बोलते हैं? स्काई में हर एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट को, तो फिर वो सन हो या मून हो, स्टार्स हो, हर एक या प्लेनेट हो, हर एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट को जो हमें रात को दिखाई देते हैं। ऑब्वियसली सन हमें रात को नहीं दिखाई देता, लेकिन ड्यूरिंग डे टाइम भी सन, आफ्टर ऑल इट इज़ वी कैन सी इट इन स्काई ओनली, राइट? तो दोज ऑल बॉडीज आर कैलेशियल बॉडीज. Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars, and the sun is a star. तो कुछ ऐसी कैलेशियल बॉडीज़ हैं जो साइज़ में बहुत बड़ी होती हैं और बहुत गर्म भी होते हैं, और वो जो बॉडीज़ हैं, दोज बॉडीज़ आर मेड अप ऑफ गैसेस, और वो जो गैसेस की बनी हुई बॉडीज़ होती हैं उनकी लाइट और उनकी हीट अपनी खुद की होती है. लाइक वी से ना कि मून की अपनी खुद की लाइट नहीं है. मून शाइन्स बिकॉज ऑफ सनलाइट, वो सनलाइट से लाइट लेता है और शाइन होता है. इट इज़ सेड लाइक दैट. लेकिन कुछ स्टार्स बड़े बड़े ऐसे हैं जिनकी खुद की लाइट होती है. That is because they are very hot and they are made up of gases. Okay, countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel that their heat or light, as they look so tiny because they are very very far from us. See, जितना बड़ा सन है उतने बड़े बड़े कई स्टार्स हैं, लेकिन हमें उन स्टार्स की गर्मी इतनी महसूस नहीं होती क्योंकि सन हमारे नज़दीक है. सन इज़ क्लोजर टू अस, बट स्टार्स आर वेरी 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 फार अवे फ्रॉम अस. ओके, देन you must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at the great height. हर एक चीज़ हमें बहुत छोटी दिखाई देती है जब हम दूर की कोई चीज़ देखते हैं. टेक एग्जाम्पल ऑफ एरोप्लेन ओनली. तो एरोप्लेन भी कितना छोटा दिखाई देता है when we see it in sky. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are known as constellation. Which are constellation? सी, ये जो अलग अलग हमें डिज़ाइंस दिखाई देते हैं स्टार्स के बने हुए, उनको कॉन्स्टलेशन बोला गया है. अर्सा मेजर आर द बिग बेयर इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन. वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्निजम कॉन्स्टलेशन इज़ सप्तऋषि. सप्त स्टार्स, ऋषि सेजेस. सी, सप्तऋषि, ये जो स्टार्स का कॉन्स्टलेशन है इसको नाम दिया गया है सप्तऋषि. 1 2 3 4 5 6 7. सप्त दैट इज 7. ओके, सप्तऋषिस इसको बोला गया है. और जहाँ पर भी ये आपको सप्तऋषि दिखेगा, और अगर आप उस सप्तऋषि के ये दो स्टार्स की लाइन में देखोगे तो उससे आगे आपको ये नॉर्थ स्टार भी दिखाई देगा, विच विल शाइन टू ब्राइटली, एंड दिस स्टार इज नोन एज नॉर्थ pole. We will study ahead in this. It is a group of 7 stars that forms the part of Ursa Major constellation. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellations in the sky. So कई तरह के स्टार्स, कई तरह के डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ स्टार्स हमें देखने को मिलेंगे. सो रात को स्टार्स को ध्यान से देखने की कोशिश करना. यू विल डेफिनेटली कम टू नो अबाउट वेरियस डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स मेड बाय स्टार्स. इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन यूजिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. पुराने ज़माने में, अभी तो चलो वी हैव सो मच टेक्नोलॉजी विद अस, ईजीली वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन, बट अर्लियर डायरेक्शन फाइंड करने के लिए भी स्टार्स की हेल्प भी ली जाती थी. The North Star indicates the north direction.
नॉर्थ स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पोल स्टार. इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई. वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि. ओके, एज आई टोल्ड यू, जिस तरह से दिस गर्ल इज़ वॉचिंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, सप्तऋषि के ये दो स्टार्स की तरफ से वो देख रही है एंड उससे आगे उसको नॉर्थ स्टार दिखाई दिया. So with the help of this Saptarishi, we can even easily find this pole star as well. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. These are pointer stars. सप्तऋषि के pointer stars हैं. अगर उसकी लाइन में देखो तो आगे नॉर्थ स्टार दिखाई देगा. दिस इज शोन इन फिगर 1.1. Okay, now some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. कुछ celestial bodies हैं स्पेस में जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, उनको लाइट मिलती है स्टार्स से. एंड हेयर आई कैन टेल यू, सन इज़ ऑल्सो अ बिग स्टार, राइट. तो उनको लाइट मिलती है स्टार्स से, जिनकी वजह से वो शाइन करते हुए दिखते हैं. द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेंटाई विच मीन्स वंडरर्स. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट. इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार. सो अमंग ऑल द स्टार, sun is our nearest star. If we look at the earth from the great distance, say the moon, it will appear to be shining just as moon. अगर हम धरती को काफ़ी दूर से देखें, से लाइक अगर हम धरती को मून से देखने की कोशिश करें तो वो भी एकदम मून जैसे शाइन करते हुए ही दिखाई देंगे. ओके, दैट इज़ earth will also shine in similar way like we feel moon shining. Okay, the moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our earth and moves around it. Like our earth, there are 8 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. सो हम जो मून देख रहे हैं वो सिर्फ अर्थ के रिलेटेड है, बट अदर प्लैनेट्स, देयर आर मैनी प्लैनेट्स विच हैव देयर ओन मून्स. ओके, अलग अलग मून्स हैं उनके पास. एंड फर्दर दे आर डिस्कसिंग अबाउट कि धरती के जैसे और भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में जो हीट और लाइट सन से ही लेते हैं. दिस होल थिंग, ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये सभी जो प्लैनेट्स हैं, ये सारे के सारे प्लैनेट्स को जो लाइट और हीट मिलता है वो सन से ही मिलता है. एंड सन इज़ क्लोजर स्टार टू ऑल दीज 8 प्लैनेट्स. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, सो दिस इज़ जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट सी व्हाट वी स्टडीड टुडे. वी स्टडीड अबाउट फुल मून, new moon, celestial bodies, stars, constellation, pole star and planets. Okay, so further explanation we will continue with our next video. Meanwhile, please go with this explanation once, twice and thrice and understand all these explanations of these block words so that you can get a clear idea of all these highlighted words. Okay everyone, so take care and please visit videos and study well. Take care everyone and bye bye.